Hello and welcome. Welcome to the ninth and the last learning session of chapter number 1 of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far. Again, I'm not going to go into the details of each and every topic. In the last learning session, I had asked you to pause the video, read each and every topic's name, and try to recall whatever you can recall about that topic. Right? I'm going to ask you to do the same thing here. Pause the video here, read the name of each and every topic that we have covered so far in this chapter, and try to recall what all can you remember about that topic. Okay, and if you think you do not remember anything about any of the particular topic, go back to that video, maybe go back to your textbook, maybe go back to your notes and try to revise what you cannot remember. Okay, I hope you have paused the video and have done that. Okay, and now you have quickly revised everything that we have covered so far in this chapter. Okay, we are going to continue with our last learning sessions topic, which is numerical problems on kinematical equations of motion, and hence today's objective will also remain the same. Students will be able to solve numerical problems based on kinematical equations of motions, the same as last learning session. These were the formulae we saw. The three basic formulas are V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2AS. जब फ्री फॉल होगा तब ए की जगह पे सब जगह पे जी आ जाएगा. देखो यहाँ पे ए की जगह पे जी, ए की जगह पे जी, ए की जगह पे जी. What is small g? Small g is acceleration due to gravity, and everywhere u will become zero because, say for example, when you're leaving a stone, it is undergoing free fall. तो starting में उसका velocity zero होता है, तो u इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा जीरो, तो हमेशा u भी जीरो. देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हुआ इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है. यहाँ पे भी जीरो हो गया तो जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ut नहीं लिखा है. u स्क्वायर जीरो स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्टली 2a स्क्वायर पे 2gh लिखा. एंड फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, उसके लिए क्या होगा, जब बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है. क्यों? जब ऊपर से नीचे कोई चीज फेंकते तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है. जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होता है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. तो कोई भी चीज को ऊपर फेंक दो, तो कोई भी चीज को अगर ऊपर फेंकोगे उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने वाला है. उसका वेलोसिटी कम हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे बस इन इक्वेशंस में यू पुट एक्सेलरेशन एज नेगेटिव, सो जी माइनस जी के पहले माइनस साइन आ जाएगा. ऑल्सो यहाँ पे फ्री फॉल में u जीरो होता है, बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स में v जीरो होता है, क्योंकि ऊपर जब किसी भी चीज को फेंकोगे ऊपर जाके वो जीरो हो जाएगा, राइट. उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर जब फेंकोगे एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाएगा हवे में. तो जिस पॉइंट वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, राइट. सो फॉर अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स, किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो आता है, इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वैल्यू होगा, राइट. सो do you need to by heart all the 6 formulas, 9 formulas? Do you need to by heart all the 9 formulas? The answer is no. You only have to remember the first 3 formulas. If you remember the first 3 formulas, बाकी सब अपने आप derive हो जाएंगे sum के हिसाब से. Okay, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. बस इन 3 formulas को by heart कर लो, बाकी 6 अपने आप उसमें से आ जाएंगे depending on the sum. वो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा. Okay, let us begin with the first sum. And remember, problems based on kinematical equations, they are very simple. उनके calculations बहुत simple होते हैं. The difficult part is figuring out कौन सा formula कहाँ पे use होगा. That's the difficult part. So if you get a hang of कौन सा formula कौन से question में use होगा, you will solve these sums very easily. Okay. So again, because we have already seen similar types of sum in our last learning session, I'm going to ask you to pause the video here, read the question, come up with given to find and formula by yourself, and then we will discuss. Okay. So I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, 5 seconds are up. I hope you have read the question and have written given to find an formula. So let me read the question first. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. एक बॉल टेबल से गिर जाता है, 1 सेकंड के बाद वो नीचे टच हो जाता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने बोला है, और क्या कैलकुलेट करने बोला है, वो जब नीचे पहुंचेगा तब उसका स्पीड क्या होगा और उस टेबल का हाइट कितना है. सो व्हाट ऑल इज गिवन?
फर्स्टली इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा क्योंकि टेबल से गिर गया, राइट? जब टेबल पे था और रेस्ट पे था, और फिर बाद में धीरे धीरे उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ होगा. सो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू बोला उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने के लिए. एंड फाइनली कितना टाइम लगा नीचे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए? 1 सेकेंड, राइट? तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. व्हाट हैव दे आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट हाइट, जिसको स्मॉल एस लिया. स्मॉल एस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्यों? देव आस्क्ड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेबल. सो हाइट को स्मॉलेस्ट ले लिया विच इज डिस्प्लेसमेंट, एंड कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. जब वो ग्राउंड पे रीच करेगा वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, राइट? उसका तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है विच इज v. ओके, सो हियर v पूछा, हाइट एंड v पूछा. The interesting part is which formulas will you use? Okay, so the formulas, there's no one correct answer. Okay, the formula they have used here is s is equal to ut plus half at square, यहाँ पे gt square लिखा है क्योंकि फ्री फॉल है, राइट? सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है. एंड देन v square is equal to u square plus 2as के यहाँ पे 2gs. ओके, जहां पे भी a वहां पे g डाल दिया. If you have written v is equal to u plus at, that is also correct. देखो, v तुम्हें फाइंड आउट करना है. v is equal to u का वैल्यू पता है 0. v is equal to u plus at के यहाँ पे gt आएगा, तो g का वैल्यू भी तुम्हें पता है, t का वैल्यू भी पता है, तुम्हें डायरेक्टली v आ जाएगा. So you can also use v is equal to u plus at. That is also correct. Okay, there's always more than one correct ways of solving any problem. So let us see how do we solve problem using these formulas. Okay, so first we'll use this formula s is equal to ut plus half gt square. तो s हमें फाइंड आउट करना है which is the height of the table. u क्या अपना 0 है, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू gt स्क्वायर. g क्या है हमारा 10, तो g के यहाँ पे 10. t स्क्वायर, t है 1 सेकेंड, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 हो जाएगा. 1 इंटू 10 10 हो जाएगा. 10 डिवाइड बाय 2 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे 5 मीटर्स आ गया. ये 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर्स आ गया. तो हमें हाइट ऑफ द टेबल आ चुका है. नेक्स्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. वेलोसिटी के लिए सेकंड फॉर्मूला यूज कर दो. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. तो v स्क्वायर तुम्हें फाइंड आउट करना है, u तुम्हें पता है 0 है, फिर बाद में 2. ये वाला जो फॉर्मूला वाला 2 है ये यहाँ पे आ गया. यहाँ पे जो g है उसका वैल्यू यहाँ पे 10 दिया, तो यहाँ पे 10 लिख दिया. s इज द हाइट ऑफ द टेबल, ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, राइट? s इज इक्वल टू 5 मीटर्स, तो s 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो 2 इंटू 10 इज 20, 25 इज 100. सो v स्क्वायर 100 आ गया. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर रूट कट होके सिर्फ v मिलेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. सो आंसर आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, is your sum done here? The answer is no. To put the final answer, so final answer is they had asked you two things, right? So those statements likhe, the velocity of the ball when it reaches the ground is 10 meters per second and the height of the table is 5 meters, and you'll put this in pencil box. So you're done with the first sum. There are only 3 sums for today. We are already done with the first sum. Okay, let's move on to the second sum. This sum was asked in July 2019 board exam for 3 marks. Okay, and it's not that difficult. 3 marks के लिए तो काफी easy problem है. So again, what I'm going to ask her to do is I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video, read the question, write given, to find, and formula. If you're able to write these 3 steps very well, calculations and final answer are not that difficult. Okay, so pause the video, write given, to find, and formula after reading the question. Okay, 5 seconds are up. I hope you have read the question and have written given, to find, and formula in your notebook. Let us discuss it. Before discussing, let me read the question first. An object thrown vertically upwards. अभी उल्टा हो रहा है. देखो, अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने देखे थे, ऊपर से कुछ तो नीचे गिर रहा था. अभी यहाँ पे उल्टा है, नीचे से हम कुछ तो ऊपर फेंक रहे हैं. ऐसा पहली बार हमने इस टाइप का सम देखा. ओके, सो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को फेंका. इट रीचेस द हाइट ऑफ 500 मीटर्स. व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? तो किस स्पीड से स्टार्टिंग में फेंका होगा जिससे कि वो 500 मीटर की हाइट पे चला जाएगा. हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ? वो ऊपर जाएगा, जैसे वो ऊपर जाएगा उसका स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा, फिर 0 हो जाएगा. 0 होने के बाद वापस नीचे आएगा वो, राइट? सो ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टोटल समय लगने वाला, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग. एंड उन्होंने स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकेंड को अज्यूम करने बोला. ओके, अगर ये नहीं दिया होगा कि जी को कितना लें तो तुम 9.8 लोगे, और अगर समझो
क्वेश्चन में दिया है कि नहीं 9.8 मत लो, 10 ले लो, फिर ही 10 लोगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कितना जी का वैल्यू लेना है तो 9.8 लोगे तो ओके। सो व्हाट विल बी योर गिवन? फर्स्ट हाइट दे दिया 500 मीटर, तो हाइट उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, एस। एस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, हाइट एस विच इज डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर्स बोल देंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकंड, यहाँ पे लास्ट लाइन में दिया। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने बोला? व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, राइट? तो इनिशियल वेलोसिटी यू फाइंड आउट करना है। फिर हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, सो टोटल टाइम टेकन, ऊपर जाके वापस नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा। So that's your given and to find. Which formula will you use? Again, an interesting question. Which formula will you use? Correct answer is same as before. पिछले समय जो दो फॉर्मूलाज यूज किए थे सेम वही फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वो पहले यूज कर लोगे, एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है u, तो ये तुम्हें u फाइंड आउट करना है। तुम्हें 2 का वैल्यू तो तुम्हें पता है 2 ही होगा। a का वैल्यू क्या है ये तुम्हें g से आ जाएगा। s का वैल्यू क्या है 500 मीटर तुम्हें पता है, बट v स्क्वायर का वैल्यू पता है क्या हमें? v स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता तो u स्क्वायर कैसे आएगा? एक इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन होना चाहिए, फिर ही तुम उसको सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हो, राइट? सो हमें a पता है इस इक्वेशन में, s पता है इस इक्वेशन में, u हमें फाइंड आउट करना है, बट v नहीं पता अभी तक। v पता होगा तो ही u फाइंड आउट होगा, राइट? तो v कैसे पता करोगे? थिंक, v कहां से आएगा? तुम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, तुम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो v क्या होगा? whenever you throw an object upwards, उसका स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, राइट? क्योंकि एक पॉइंट पे जाके वो रुकने वाला है, जिस पॉइंट पे वो रुकेगा उसका वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो है। ए का वैल्यू तुम 10 ले सकते हो जो जी होने वाला है तुम्हारा, एंड एस का वैल्यू 500 मीटर्स दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से यू आ जाएगा। एक बार यू आ गया तो इस फॉर्मूला में से टी को फाइंड आउट कर सकते हो। तुम्हें एस पता है, यू पता है, एंड ए का वैल्यू भी पता है, तो टी एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, वो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी द कैलकुलेशंस नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल v इज इक्वल टू 0, ये पहले तुम्हें बोलना पड़ा क्योंकि वो ऊपर फेंक रहे हो। जैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे एंड में उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस जी, एंड g का वैल्यू 10 दिया था तो -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों हो गया? आई टोल्ड यू, राइट? ऊपर से कोई भी चीज को नीचे फेंको उसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, और उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो उल्टा होगा, उसका स्टार्टिंग में स्पीड ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज्यादा होगा, धीरे धीरे जैसे ऊपर रहेगा वो इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। रिमेंबर ऑल दिस, जब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, यू नीड टू रिमेंबर दैट। ऊपर से नीचे जब तुम किसी चीज को फेंकोगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। नीचे से ऊपर कोई चीज को फेंकोगे तुम तो वेलोसिटी कम होते जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो दोस टू थिंग्स दे आर पुट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। नेक्स्ट यू स्टार्ट यूजिंग द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला v स्क्वायर के जगह पे जीरो आ गया क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, एंड v हमें जीरो हमने बोल दिया। u स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, उसको वैसे के वैसे प्लस प्लस टू को वैसे के वैसे लिख दिया। a की जगह पे -10 लिख दिया क्योंकि वो माइनस जी होगा, तो a की जगह पे -10, एंड s इज 500। सो कितना हो जाएगा? 2 × 10, 2 10 अच्छा नहीं, पहले यहाँ पे राइट साइड में कर लेते हैं। ओके, so 10 into 500, 10 into 500 will be 5000, and 5000 multiplied by 2 will be 10,000, 5000 का डबल 10,000, एंड यहाँ पे माइनस साइन है, राइट? सो ये -10,000 हो जाएगा। सो -10,000 यहाँ पे लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? +10,000, तो तुम्हें u स्क्वायर प्लस 10,000 स्क्वायर 10,000 मिल जाएगा, राइट? बट दिस इज u स्क्वायर, हमें क्या चाहिए? u स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, हमें u चाहिए, राइट? सो विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो u स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, सिर्फ u मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10,000, देखो यहाँ पे 4 जीरोस है, उसके आधे जीरोस कर दो, 4 के 2 जीरोस, दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज 100, सो 100 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू मिल गया, पहली चीज जो पूछी थी वो मिल गई है। ओके, नेक्स्ट अभी ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचने के बाद वो वापस नीचे आने वाला है। सो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तब
u इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ऊपर था, ऊपर उसका वेलोसिटी 0 पहुंच गया एक पॉइंट पे, तो अभी वहां से जब वो वापस नीचे आएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, राइट। तुमने बेसिकली इस प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट क्या है, नीचे से ऊपर जाने तक, नीचे से ऊपर जाने तक तुमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, ओके। उसमें v फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अभी सेकेंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, वो एक बार ऊपर पहुंच गया ऑब्जेक्ट, अभी ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो अभी इसको इनिशियल पॉइंट ले लो जहां पे वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। ओके, सो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, अभी देखो वापस ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे ही चीज कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। I'm going to repeat that. I'm not sure if I said that correctly. नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो अभी ए क्या हो गया, वापस जी हो गया। यहाँ पे ए को माइनस जी लिया था, यहाँ पे ए जी हो जाएगा, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। Great. Now we'll start using the formula, right? S is equal to ut plus half at square, right? So s का वैल्यू 500 दिया है क्वेश्चन में, इसको यहाँ पे 500 लिख दिया। ut, तो u को हमने 0 बोला, राइट। ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर रेस्ट पे था वो, वहां से हमने टाइमर लगाना शुरू किया। सो जब रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं, सो हियर u विल बी 0, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, ओके। नेक्स्ट, ये जो हाफ है उसको वैसे का वैसे, एक जो है उसको हम 10 ले रहे हैं, सो 10 एंड टी स्क्वायर वैसे का वैसा, ओके। सो व्हाट इज 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5, तो यहाँ पे जो 5 टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 500 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज 10 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज 5, 5 यहाँ पे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 500 से डिवाइड हो जाएगा, सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 5, ओके, which will come to 100। so t square क्या आ गया, 100। now again this is t square, हमें t square नहीं चाहिए, हमें t चाहिए, टाइम चाहिए, राइट, टोटल टाइम टेकन। सो हमें टाइम चाहिए, so we'll take square root on both sides, तो यहाँ पे square root कट हो जाएगा, square root of 100 is 10 seconds, so टाइम t 10 seconds आ गया, तो हो गया अपना सम, राइट। इनिशियल वेलोसिटी u हमें मिल गया 100 मीटर्स पर सेकेंड, एंड फिर बाद में टोटल टाइम टेकन 10 seconds मिल गया, राइट। so we are done with our sum। if you thought I was saying something correctly, you are wrong, okay। our sum is not done here। क्यों, ये जो 10 seconds हमें मिला है, ये कौन सा टाइम है ऊपर से नीचे आने तक, बट नीचे से ऊपर जाने के लिए भी तो कोई टाइम लगा होगा। देखो यहाँ पे जो, एज आई टोल्ड यू, वी हैव डिवाइडेड दिस प्रॉब्लम इनटू टू पार्ट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट इज नीचे से ऊपर जाने के लिए, वो नीचे से ऊपर जाने के लिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर दिया और उसमें से इनिशियल वेलोसिटी निकाल दिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सम इज डन। और सेकंड पार्ट कौन से पार्ट में डिवाइड किया हमने अपने सम को, ऊपर से वापस नीचे आएगा, ऊपर से जब वापस नीचे आएगा तब हमने सेकंड फॉर्मूला यूज किया और उसमें से टाइम निकाला है। तो जो टाइम मिला है ये सिर्फ ऊपर से नीचे आने तक का टाइम है, बट नीचे से ऊपर जाने के लिए भी तो टाइम लगा होगा, तभी तो हमें टोटल टाइम मिलेगा। सो विल हैव टू ऐड द टाइम हियर, ओके। ये फुल टाइम नहीं है। सो व्हाट यू गोना डू इज, विल से टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी ऑफ द बॉल विल बी सेम एज टाइम फॉर डाउनवर्ड जर्नी। ऊपर से नीचे आने के लिए जितना समय लगा, नीचे से ऊपर जाने के लिए भी उतना ही समय लगा होगा, ओके। एंड यू कैन ट्राई दिस आउट विद अ बॉल इफ यू हैव, बॉल को ऊपर फेंको, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना समय लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने के लिए लगता है, ओके। सो अगर ऊपर से नीचे आने के लिए 10 सेकंड मिले थे, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना मिला होगा, 10, कितना लगा होगा, 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स इंटू 10 सेकेंड्स, सॉरी 10 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स, और 10 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 20 सेकेंड्स मिल जाएगा। सो टोटल टाइम टेकन क्या है, 2 इंटू टी विच इज 2 इंटू 10 विच इज 20 सेकेंड्स। तो ये हमारा टोटल टाइम है, ओके। I'm just thinking, should I revise this sum? Okay, I think I should revise this sum. Okay, I'll revise this sum one more time because it's an important sum. This sum was asked in July 2019 board exam for 3 marks. I'm going to revise this sum one more time. It's an important sum. Okay. So question में क्या हुआ था? An object was thrown vertically upwards and it reached 500 meters वाला height. तो जब वो नीचे से ऊपर फेंक रहा है और वो 500 मीटर की हाइट तक जा रहा है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, किस स्पीड से उसको ऊपर फेंका था। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव आस्क्ड। सेकंड थिंग, उसको
हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ, ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना समय लगेगा। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, नीचे से ऊपर जाना फर्स्ट पार्ट, ऊपर से नीचे आना सेकेंड पार्ट। ओके, नीचे से ऊपर जाने वाले समय में हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, और फर्स्ट फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। नीचे से जब ऊपर जाके उसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगा, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ओके, सो हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर आ गया u इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट जिसमें हमने डिवाइड किया सम को इज, ये अभी ऊपर पहुंच गया, रेस्ट पे आ गया। ओके, ये बॉल अभी ये वापस नीचे भी तो आएगा, सो जब वो वापस नीचे आएगा तब उसने शुरुआत कहां से की थी, रेस्ट से की थी, रेस्ट से यानी जीरो वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। अभी ऊपर से जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है, वेलोसिटी इंक्रीज यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया वापस। तो हम यहाँ पे सेकेंड टाइम जब फॉर्मूला यूज करेंगे तब हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लेंगे, कि अभी वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली, ऊपर से नीचे आ रहा है। Then again we put all the values in the second equation and we get time as t seconds. But ये जो time t seconds मिला, sorry time 10 seconds मिला, t seconds बोल रहा था मैं, टाइम 10 सेकेंड्स मिला है, ये ऊपर से नीचे आने के लिए समय है, राइट, क्योंकि हमने सिर्फ सेकेंड पार्ट कंसिडर किया था ऊपर से नीचे आने के लिए, बट नीचे से ऊपर जाने के लिए भी तो कुछ समय लगा होगा, तो उसको कंसिडर करने के लिए, उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने के लिए भी लगा होगा। ओके, एंड दैट यू कैन चेक यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट, डू दैट एक्सपेरिमेंट एट होम। सो यू से दैट and say total time taken is 2 into t, which is 2 into 10, which is 20 seconds, and finally write the final answer. Okay, so the initial velocity of the object 100 meters per second and total time taken for an object to reach the height and come back down is 20 seconds. Okay, so that's your answer to the second question. Last question for the day and last question for this chapter is this, is the exact same question, पिछला जो sum था same to same question है, it's a solved example given on page number 12, सिर्फ numbers change किए। okay, so try to solve this sum completely बिना देखे। ओके, पिछला सम अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो पिछला सम एक बार रिवाइज कर लो, पिछला सम रिवाइज करने के बाद सेकंड बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन दिया है इस स्लाइड पे उसको रीड करके बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम, ओनली द नंबर्स हैव बीन चेंज्ड। ओके, सो आई विल वेट फॉर 5 seconds फॉर यू टू सॉल्व द कंप्लीट प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, पूरा का पूरा प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर दो, पिछले सम की तरह एग्जैक्टली सॉल्व करना है। ओके, आई विल वेट फॉर 5 seconds. Okay, 5 seconds are up. I hope you have solved the entire sum. Let us look at the solution now. पहले given लिखना था, so distance traveled by the ball जो कि s हो गया, displacement 4.05 meters आ जाएगा, क्यों, क्योंकि tennis ball is thrown up reaches the height of 4.05 meters दिया है यहाँ पे। फिर acceleration कितना लेने बोला है, 10 meters per second, so acceleration is equal to g is equal to 10 meters per second. To find, क्या find out करने बोला है, initial velocity find out करने बोला है, and हाउ मच विल बी द टोटल टाइम, राइट, आई टोल्ड यू एग्जैक्ट पिछले सम में जो पूछा था एग्जैक्टली सेम चीज पूछी है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि सेम गिवन एंड टू फाइंड है तो सेम फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू चेक द कैलकुलेशन। ओके, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तब g को नेगेटिव ले लो, g को नेगेटिव लेके सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें u स्क्वायर 81 आ जाएगा। u स्क्वायर अगर 81 आ गया तो उसका स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा, तो u इज इक्वल टू 9 मीटर्स पर सेकंड आ गया। अभी नीचे से ऊपर पहुंच गया, अभी ऊपर से वापस नीचे आएगा तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, तो u जीरो हो गया, और ये अभी पॉजिटिव हो गया, ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट इन द सेकंड इक्वेशन, once you substitute in the second equation, s के यहाँ पे 4.05, u जीरो था तो ut जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, तो जी क्या है तुम्हारा 10 एंड टी स्क्वायर वैसा का वैसा, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, 5 यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलएचएस में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 405, सो 4.05 डिवाइड बाय 5 वो आ जाएगा 0.81, बट ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.81, to find t you will take square root on both sides, so square root of 0.81 will be 0.9, तुम्हारा आंसर है 0.9 seconds, बट ये सिर्फ ऊपर से नीचे आने तक का समय है। ओके,
बट नीचे से ऊपर जाने के लिए भी समय लगा होगा, तो तुम उस नंबर को सिर्फ डबल कर दोगे. ओके, सो राइट द सेम रीजन and double your answer for t, and you will get as 1.8 seconds. And then write the final answer and you will be done with your sum. Initial velocity 9 meters per second and total time taken by the ball to reach the ground is 1.8 seconds. So you're done with your uh, final answer as well. Put that in pencil box. Okay, so that is it for this learning session. That is it for this chapter. uh, Numerical problems on kinematical equations of motions are the most important part of this chapter. Okay, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से जनरली काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशंस. वो जो तीन फॉर्मूलाज है, v is equal to u plus at, s is equal to at plus s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2s. ये तीन फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए. कब ए जी हो जाएगा? जब फ्री फॉल होगा. फ्री फॉल होगा तो जहां पे भी ए लिखा है एक्सेलरेशन, वो स्मॉल जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब भी फ्री फॉल हो रहा है, इनिशियली उसका स्पीड जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू हमेशा जीरो हो जाएगा. ये फ्री फॉल के लिए दो चेंजेस करने वाले पड़ेंगे. नीचे से जब ऊपर फेंक रहे हो, जब भी नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तब यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ तो स्पीड होगा उसके पास, और फाइनली उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, तो वी जीरो हो जाएगा. यू जीरो, सॉरी, यू नॉन जीरो, यू का कोई वैल्यू होगा, वी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा. एंड अभी जहां पे भी जी था वहां पे माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि अभी स्पीड कम होने वाला है. स्पीड कम होने वाला है तो acceleration negative, so small g negative. All that you have to keep in mind. And then calculation part is very simple for problems based on kinematical equations of motion. Okay, so that is it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objective or not. If I give you a similar problem based on kinematical equations of motion, will you be able to solve it? If yes, then you have achieved today's and even yesterday's learning objective. Okay, so that is it for this um, learning session. That is it for this chapter. Okay, but before actually closing out, I want to talk about one more application of this chapter. Okay, um, yes, before closing out, I want to talk about one more application of this chapter. Okay, and it's a very important application which I did not share with you all at the beginning of this chapter when we were discussing why should we learn this chapter. So you must have heard about asteroids, right? Asteroids यानी क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो हमारे अर्थ के आजू बाजू या फिर हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे होते हैं. ओके, तो जो हमारे सोलर सिस्टम में छोटे छोटे पत्थर, छोटे बाय छोटे आई मीन एक बिल्डिंग जितना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस वाले पत्थर, ये जो घूम रहे हैं अपने सोलर सिस्टम में, उसको एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, वो जो एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ के अंदर घुस जाते हैं. एंड डायनासोर्स आर बिलीव टू बी extinguished, they are believed to become extinct because of a meteor, right? ऐसा कोई तो एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस गया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने की वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया अर्थ पे कि सब के सब मर गए. ओके, ओनली द animals who are able to go inside tunnels under the ground or inside water for some time, they were able to survive. All other big animals on planet earth, they died. Similar thing can happen to us as well. For example, अगर कल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया, तुम लोग क्या करने वाले हो? यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. अगर समझो 1 किलोमीटर रेडियस वाला भी एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गया और मुंबई पे गिर गया, वी हैव नो वे टू डू एनीथिंग अबाउट इट. इफ यू थिंक उसको न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर डाल देंगे या फिर उसके ऊपर स्पेसशिप घुसा के उसको थोड़ा दूर कर देंगे, ऑल ऑफ द मैथ्स डज नॉट वर्क आउट. ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स यूज करके ये सारे सोल्यूशंस के बारे में सोचा है, बट इट डज नॉट वर्क आउट. ऐसा हम लोग उससे बच नहीं पाएंगे एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस. तो क्या करना पड़ता है, सारे साइंटिस्ट को अर्थ के पास में जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं उन पे बहुत अच्छे से नजर रखनी पड़ती है. ओके, यूजिंग सैटेलाइट्स, यूजिंग टेलीस्कोप्स, दे विल कीप अ वेरी कीन आई ऑन अर्थ, ऑन एस्ट्रॉइड्स अराउंड द अर्थ. जो कुछ भी अर्थ के आजू बाजू पत्थर घूम रहे हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. एंड वो अगले दिन कहाँ पे जाएगा, 1 महीने के बाद कहाँ पे होगा, 1 साल के बाद कहाँ पे होगा, 100 साल के बाद कहाँ पे होगा, ये सब कैलकुलेट करके रखते हैं कंप्यूटर से. तो जब कैलकुलेट करेंगे कि 1 साल के बाद कहाँ पे होगा, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको उस फॉर्मूला को यूज करेंगे. एंड ये बस एस्ट्रॉइड और अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे,
वो एस्ट्रॉइड एंड अर्थ का ग्रेविटेशन, वो एस्ट्रॉइड एंड मून का ग्रेविटेशन, वो एस्ट्रॉइड एंड सन का ग्रेविटेशन, वो एस्ट्रॉइड एंड जुपिटर का ग्रेविटेशन, क्योंकि जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है। तो ये सारे कैलकुलेशंस को उनको एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा और प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि एक दिन के बाद एस्ट्रॉइड कहाँ पे जाएगा, एक हफ्ते के बाद कहाँ जाएगा, एक महीने के बाद कहाँ पे जाएगा, एक साल के बाद कहाँ पे जाएगा, एंड दे हैव टू कीप अ चेक कि अच्छा ये एस्ट्रॉइड एक साल के बाद यहाँ पे होगा, ये एस्ट्रॉइड एक साल के बाद वहां पे होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड वी हैव टू मेक प्रेडिक्शंस कि कब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड आ सकता है। जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतना जल्दी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। इफ वी नो कि एक साल के बाद मुंबई में एक एस्ट्रॉइड गिरने वाला है एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट, इतना बड़ा है कि तुम उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, एक साल के लिए मुंबई को पूरा खाली कर सकते हैं, एंड मुंबई के आजू बाजू जितना भी एरिया उसको खाली कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, जिनका ये काम होता है कि सारे सैटेलाइट्स टेलीस्कोप में एस्ट्रॉइड्स को ऑब्जर्व करो और कैलकुलेट करो, ओके। जो अब भी हमने पिछले 2 लर्निंग सेशंस में कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मोशन कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो एंड सो सिमिलर कैलकुलेशंस दे डू, बट सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं होता, वो कैलकुलेशंस 4-5 ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, एज आई टोल्ड यू। वो पत्थर एंड अर्थ, पत्थर एंड मून, पत्थर एंड सन, पत्थर एंड जुपिटर, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक दूसरे पे ऐड करेगा, एक दूसरे पे सब्ट्रैक्ट करेगा, वो सब एक साथ करना पड़ता है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट दे हैव कंप्यूटर्स टू हेल्प देम। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। हमने जो फॉर्मूलाज यूज किए, सेम फॉर्मूलाज दी साइंटिस्ट आल्सो यूज, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि ऐसा कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ पे हिट करने वाला है कि नहीं। सो आई होप यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, and after knowing all this, I hope you find this chapter a little more meaningful, because it's the same calculations, same formulas that we use, that these scientists also use to keep us safe. So that is it for this learning session. I hope you enjoyed. I hope you understood everything, and we'll see each other in the next chapter. Till then, bye and